Hi there, this is Maheen Hashmi, and I hope आप अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे. So this is Let's Talk, a podcast of my group Free Spirits. It will be posted on my YouTube channel and my other social media platforms as well. In this segment, I invite people, individuals, professionals who are thriving in their journey, and we talk about that where have they started from and where they are now and what they're doing, and क्या क्या उनके रास्ते में रुकावटें आई, क्या उनके साथ गुड लक चार्म्स हुए वगैरह वगैरह. So आज हमारे साथ है very pretty and very talented Nadia Khan because she's a recipe creator. Yes, she makes her own recipes, and she's a chef also. She's also an artist as well. And it's Eid aa rahi hai. It's all about food. It's always about food for us. So we are going to talk a lot about food with her. So here she is. Hello, Nadia. Hello, Mehreen. How are you? I'm good. How are you doing? I'm well. I'm doing well, Alhamdulillah. थैंक यू फॉर कमिंग. ईद है कल, तो आपका तो बहुत ज्यादा काम इस वक्त इंक्रीज हुआ हुआ होगा. तो अभी जी, क्या चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह. अभी मैरिनेशंस चल रही हैं, गोश्त कट रहा है, ये सब हो रहा और वैसे जो आपका जो है ज्यादातर इसी से ही रहता है कि आप अक्सर आपका जो स्पाइसी किचन है, you are making recipes and posting recipes and all of that. So can you just give an overview what you have and how was it, and is it active on Eid or not? I'm very much active on Eid. Actually, orders लेती हूँ lunches और dinner वगैरह के for Eid day 1 and 2. तो उसके हिसाब से फिर जाहिर है मैं फिर बिजी माशाल्लाह इतना ज़्यादा होती हूँ इसमें कि I don't have time for any other thing. So यही सारा जो वीक होता है ईद का स्पेशली जो भी होता है तो वो सारा ग्रोसरीज में और इन सब इसी में मेरा गुजर जाता है. और ईद के दिन भी मेरा जो है वो किचन में ही गुजरता है क्योंकि घर वालों की भी डिमांड्स होती हैं और फिर सब ऑर्डर्स भी पूरे करने होते हैं. तो वो सारा काम बस इसी तरह चलता है. बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत Alhamdulillah. शुक्र है. You have your own service also for food, right? It's catering service. It's you. It's online catering service. I deliver food. I take orders through my page and through my Instagram handle. So उससे orders आते हैं. So मैं deliver करती हूँ उनको. I take at least 1 day in advance to take orders. So I don't keep anything in my freezer. I buy it then and there. जैसे order आते हैं so I buy the meat and everything. So फिर इस तरह से सारा that continue everything. So it's all fresh. It's all That fresh means and it's organic. all fresh. Okay. Oh, that's good. So you have different cuisines also. You have Thai. I keep on seeing Thai food, and there are other desi food as well. So आप थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे कि you have a lot of variety of different regions as well. Yes, actually, I've been to these places जहाँ जहाँ के मैं खाने ऑफर कर रही हूँ. आहिस्ता आहिस्ता मेन्यू में अब बढ़ाती जा रही हूँ जो मैंने खुद टेस्ट किए हुए एक्चुअली. Thai, I'm a trained Thai chef. So उसमें ये था कि पहले जब मैंने स्टार्ट किया था सो उस वक्त तो मुझे सिर्फ शौक था. देन आई ट्रेन माई सेल्फ फॉर अ ईयर. उसके लिए मैंने पूरी ट्रेनिंग ली और बाद में जो है वो देन आई एडेड इंडियन फूड एज वेल because Indian food is the key ingredient to all the South Asian uh, things. जितना भी हम लोग साउथ एशियन आप कहीं भी चले जाएं तो इंडिया का एक्चुअली ये जैसे हम पाकिस्तानी भी जो हैं हमारे बहुत से दिल्ली से जो है वो खाने इन्फ्लुएंस उससे है. तो हैदराबाद दक्कन की हमारे यहाँ बहुत वैरायटी होती है. पंजाब की तरफ देखें तो वहाँ नॉर्दर्न पंजाब एरिया जितने भी हैं तो उधर की बहुत वैरायटी होती है. तो आई थॉट कि ऐसी कुजीन्स रखनी चाहिए जो हमारा अपना देसी फ्लेवर भी उसमें आए और बाहर के भी लोगों को मिले. तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं इसमें ऐड करती जा रही हूँ. जिस तरह श्रीलंकन भी मैंने ऐड किया है अभी और भी करूँगी वियतनामीज भी इंशाल्लाह. तो इट्स लाइक गोइंग ऑन एंड ऑन. It's increasing.
It's माशाल्लाह से increasing, it's inshallah. increasing. So do you are a Thai trained chef, so Baki cuisines ka how do you, because you are a recipe creator as well, so what's the difference between chef and recipe creator? I would like my audience to know. एक्चुअली उसमें एक शेफ तो होता है, एक खास कुजीन के लिए, जिसमें अगर आपने करना है, जिसमें बहुत से फ्रेंच कुजीन के लिए करते हैं ट्रेन अपने आप को, या आप किसी भी खास कुजीन के लिए अपने, हमारे जो हैं वो देसी जो है वो जो शेफ्स हैं, तो वो अपनी जो डिशेस हैं उनकी खास, उनके लिए अपने आप को ट्रेन करते हैं. सो मैंने थाई एक्चुअली इसलिए चूज किया था बिकॉज माय हस्बैंड इज वेरी फॉन्ड ऑफ स्पाइसी एंड दिस काइंड ऑफ फूड, एंड वी ट्रेवल्ड अ लॉट. सो हमारा ये होता था कि हम लोग जगह जगह जहाँ भी जाते थे तो सबसे पहले उसका स्ट्रीट फूड जो है वो ट्राई करते थे, बिकॉज इफ यू वांट टू नो अ कंट्री, फर्स्ट यू हैव टू ट्राई देयर स्ट्रीट फूड. सो उसके बाद आप किसी बड़े रेस्टोरेंट में या कहीं भी जाकर तो आपको खाना खाने करें, लेकिन स्ट्रीट फूड इज मेन, दैट इंग्रेडिएंट कह लें या मेन उसकी वो कह लें कि आपको ये सब करना चाहिए मेरे हिसाब से. और फिर ये होता था कि हम लोग जाहिर है जगह जगह जब जाते थे वहाँ के खाने खाते थे तो बहुत हम लोगों को अच्छा लगता था, और उसके हिसाब से फिर मैं ये करती थी कि मैं फिर अपनी रेसिपी उसकी बेस पे लेकर जब घर आती थी तो आई ट्राई टू क्रिएट माय ओन रेसिपी, जिस तरह जो हमारे देसी से भी मिले और उनके भी फ्लेवर्स वो हो. तो कुछ रेसिपीज मैंने इस तरह क्रिएट की. थाई में ये था कि 2-3 रेसिपीज, जाहिर है नॉट ऑल ऑफ इट, बट उसकी कुछ रेसिपीज मैं ये करती हूँ कि अपने भी जो है वो जैसा मेरा टेस्ट है तो मैं ऑफ कोर्स अपने टेस्ट के हिसाब से बनाती हूँ सारा जो भी है. तो मैं फिर उसके हिसाब से रेसिपी क्रिएट करती जाती हूँ, देखती रहती हूँ कि अगर ये इंग्रेडिएंट डालूँ तो ये कैसा होगा, वो डालूँ तो वो कैसा होगा. फिर जब आप 1-2 दफा करते हैं तो फिर आपका दिमाग चलने लग जाता है और आपको पता भी चल जाता है. आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाएंगे, आप कोई चीज जिस तरह ऑर्डर कर रहे हैं, आप खा रहे हैं, तो जिस तरह मेरी अम्मी की आदत थी तो वो हर चीज को देखती थी, यानी खोल के कि इसमें क्या है, टेस्ट करती थी और उनको, और देन वो अपना यानी वर्जन जो है उस चीज का बनाती थी. तो वही आदत मेरे अंदर भी है, मैं देखती हूँ कि क्या क्या है, आई इंस्टेंटली नो कि इसमें ये इंग्रेडिएंट्स डले हुए होंगे, टेस्ट से अब मुझे इतना आइडिया हो जाता है. तो फिर मैं उसमें फिर अपना भी करती हूँ ताकि थोड़ा मेरा मार्क भी रहे उसके अंदर. तो दैट आई एम ट्राइंग टू डू. Okay, so Asad here says, I love pani puri, chana chaat, and many, many more. So you have Oh a yes. lot of recipes. What's your most demanding ones? What सबसे ज़्यादा क्या आपका famous है? Your signature? एक्चुअली थाई फूड जितना भी मेरा जाता है अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है. इंडियन जो कुजीन है उसके अंदर मेरा बिहारी दम कीमा एंड चिकन 65, they are like most running items, like everybody wants this. So अल्हम्दुलिल्लाह इसमें ज़्यादा मेरा वो होता है. बाकी देसी आइटम्स में मैं, मेरे खास कस्टमर्स हैं जो जिनको पता है कि मैं, it's not on my menu like everything, but it's for some special customers जो मुझे खास तौर पे ईद पे या वैसे अलग से उनका कभी दिल चाहता है तो वो ऑर्डर करते हैं. So ये सब कुछ शुरू कैसे हुआ? मतलब पहली कौन सी डिश थी जो आपने बनाई और कहाँ से सोचा और फिर यहाँ तक पहुँचे? महरीन, मैं सच बोलूं तो मुझे खाना पकाने का बिल्कुल भी शौक नहीं था. Really? So Yes, it is actually. मुझे खाना बनाने का बिल्कुल भी शौक नहीं था. I try to run away from the kitchen. मेरी अम्मी मुझे जो है वो वीकली टास्क देती थी और ये कहती थी कि भाई तुम्हें जो है वो ये करना है. मुझे तो ये भी नहीं मालूम था जब मेरी शादी हुई थी कि सालन का रंग ऐसा कैसे हो जाता है. आई वॉज सो डम, आई वॉज 0 मीटर. सो really, oh my God. यस. तो फिर ये होता था कि मैं जिस तरह कभी जले हुए आलू बन गए, कभी कुछ हो गया, यानी आई ट्राइड फ्रॉम स्क्रैच. और फर्स्ट ईयर वाज हॉरिबल. मेरे हस्बैंड ने बेचारे ने और मेरे जो देवर मेरे साथ होते थे, सबर शुक्र करके वो दोनों खा लेते थे. तो
हाँ, तो दैट वाज माय स्टार्ट एक्चुअली, एंड देन फिर ओके। मुझे मेरे हस्बैंड ही वाज इन फ्लाइट सर्विसेज, तो फिर उनका ये होता था वो ट्रैवल बहुत ज्यादा करते थे, पूरी दुनिया उन्होंने देखी हुई थी, हर जगह के खाने खाए हुए थे। तो फिर उसमें ये होता था कि वो फिर आते थे शौक से, वो कहते थे हाँ चलो हम ये करते हैं वो बनाएंगे। फिर जब मैंने ट्रैवलिंग ज्यादा शुरू की तो जाहिर है फिर मेरा भी जो टेस्ट है वो और ज्यादा डेवलप होने लग गया। क्योंकि मैं बाहर पली बड़ी हूँ, सऊदीया में, पाकिस्तान में अपनी शादी के बाद आई थी, तो मुझे इतना आइडिया नहीं था कि पाकिस्तान में यानी कितना वो होता है। वी वर यूज टू ईट मोर ऑफ यू नो, जैसा हम लोग सऊदी खाना ज्यादा वो खाते थे, बनाती थी अम्मी हमारे घर में, देसी भी बनता था, बट हम लोगों को ज्यादा पसंद वहीं का आता था। तो मुझे इतना ज्यादा आइडिया नहीं था कि पाकिस्तान में लोगों का टेस्ट कैसा है। आई थिंक ओके। देन आई started off my teaching career, और उसके बाद मैंने I was so bored with it and then I left it after 9 years, and then I started off my kitchen, and माशाल्लाह उसमें फिर ये हुआ कि मेरा I think it was 2015 का end था, and from then I was like unstoppable. I mashallah, it was like growing day by day. वर्ड ऑफ माउथ होता है तो वो फिर लोगों को पता चलता है, तो उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। तो और फिर अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग। क्वालिटी भी तो होती है ना, वर्ड ऑफ माउथ भी तो बहुत डिफरेंट तरीके से भी फैल सकता है तो। बिल्कुल। मैं एक्चुअली आई डोंट हैव एनी हेल्प, मैं ओके। सारा काम खुद अपने हाथ से करती हूँ। आई डोंट वांट टू कीप एनी हेल्प, इसलिए क्योंकि मुझे मालूम है कि किस तरह से करना है। आई वॉश द मीट माई सेल्फ, वेजिटेबल्स, एवरीथिंग आई डू इट फ्रॉम स्क्रैच। सो उसमें ये होता है कि आप जो है वो आपको पता होता है कि आप किस तरह का काम कर रहे हैं, आप कैसी चीज कैसी प्रोडक्ट अपने कस्टमर्स को दे रहे हैं। तो मैं हेल्प पे बिल्कुल भी रिलाई नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ अपने ऊपर रिलाई करती हूँ, अपनी वाओ। कन्वीनियंस से। हाँ, अपनी कन्वीनियंस से ऑर्डर लेती हूँ। आई डोंट टेक इट लाइक ऑर्डर आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं तो मैं पागलों की तरह लिए जा रही हूँ और मैं कर नहीं पा रही पूरे। सो आई टेक टाइम कि जिस तरह भी मैं अपनी फैमिली को भी टाइम दे सकूं और अपने अपने लिए भी, सबसे बड़ी बात है, अपने लिए टाइम निकाल सकूं। सो आई डू इट लाइक दैट। एंड यू हैव किड्स एज वेल, माशाल्लाह यस, से। माशाल्लाह, आई हैव 4 grown up kids। वाओ। एंड देन उनकी भी अलग-अलग फरमाइश होती होंगी। उनकी फरमाइशें दे आर लाइक अनस्टॉपेबल, उनका तो कोई आप रोक नहीं सकते। उनकी फरमाइशें माशाल्लाह रोज पूरी होती हैं, क्योंकि उनको पता है कि अम्मा ने बना के देना ही देना है, तो ये होता यू है। आर लाइक एन आइडियल मॉम, की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना कि खाना Oh, तो please बस। don't say that. Don't say that. I'm not an ideal mom, but I try to be one. Um, You can cook I and a lot try, of cooking as well. yeah, I can try. I am trying my best. I'm trying कि मैं अच्छा कर सकूं, और फिर मेरे बच्चे मुझसे कुछ इंस्पिरेशन लें। एंड अल्हम्दुलिल्लाह इतनी इंस्पिरेशन वो मुझसे लेते हैं सब, यानी उनका बहुत अच्छा, उनको भी बहुत शौक हो रहा है। लाइक माय यंगेस्ट वन, ही इज माशाल्लाह नाउ 16 years old, so he wanted to be a culinary, that chef in Wow. future inshallah. So I'm like very proud of him, and he makes his own recipes as well. So Wow. yes, It's like your and genes. maybe I don't know, but it's like he is like very good in making like Italian food and all, so he likes that, and especially healthy food, not Okay. oily food at all. He is into healthy food kind of a thing. So उसको बहुत ज्यादा शौक है, वो अपनी चीजें अगर जिस तरह मैं कुछ करूंगी तो ही इज लाइक लेट मी हेल्प यू इन द किचन। सो वो आके बीच में, जिस तरह मैं घर का कुछ कर रही हूँ, स्पेशली ऑर्डर्स जब होते हैं तो कोई बच्चा किचन में नहीं आता, दे नो दैट आई एम गोइंग टू टर्न इनटू अ मॉन्स्टर इफ दे Oh, कम no इनटू way. सो सो जब मैं घर का कर रही होती हूँ तो देर लाइक अम्मा हम ये कर देते हैं, लेट लेट अस हेल्प यू, so they're like that. Okay. So किस तरह से how do you manage time? Because cooking में तो आप जल्दी भी नहीं कर सकते ना उसको, आपको उतना ही
कि थोड़ा सा if you want बिल्कुल to give tips for some people जो कि नई लड़कियां होती हैं या they have kids or something if they want to cook. So preparation में आपको अलग टाइम चाहिए होता है, फिर कुकिंग में अलग टाइम चाहिए होता है. What's the basic rule of बिल्कुल it? देखिए शुरू में मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी, आई वोंट लाई अबाउट इट, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी एक तरह से होता है. यू नीड टू अप योर गेम इन दैट. उसमें आपको ये करना मैंने फिर ये स्टार्ट करना शुरू किया. आई स्टार्टेड राइटिंग फर्स्ट कि मुझे किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, क्या क्या चीज़ें मुझे चाहिए, सारा कुछ मैं पहले ही प्रिपेयर कर लेती थी. And then I started up, that there's a preparation time as well for when you start something, cooking. So उसके लिए prep time आपको 10 minutes चाहिए, आपने चिकन काटनी है, धोनी है, जो भी करना है. तो ये सारा अगर आप एक दिन पहले लेकर आ रहे हैं तो then you have to of course defrost before time. फिर उसकी सारा आप स्क्रीन करें, सब कुछ करें. तो आई डू दैट. फिर उसके बाद ये हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता मेरा टाइमिंग्स जो हैं इट स्टार्टेड टू गेटिंग बेटर. और फिर अब ये होता है कि यार विद इन एन आवर आई कैन मेक अल्हम्दुलिल्लाह 4 to 5 डिशेस नाउ. उसमें ये होता है कि मैं 1 घंटे में जल्दी जल्दी, क्योंकि सारे स्टोव्स के ऊपर मैं सब वो रख देती हूँ. एंड देन Multitasking होगा. multitasking in the kitchen. So it's like that. अल्हम्दुलिल्लाह वो वक्त के साथ साथ एक्सपीरियंस के साथ साथ आपकी वो अच्छा होता रहता है आपका. यू गेट द ट्रेनिंग ऑल्सो कि अब ये करना है. और फिर जब मैं आई वाज गेटिंग ट्रेन्ड बाय अ शेफ, तो उसमें मुझे बहुत डांट पड़ी थी, बहुत ज्यादा. मुझे एक्चुअली वो लोग बेइज्जती तो बहुत करते हैं ना जब कुछ सिखा रहे होते हैं. तो so when you're It's cutting an like a onion, तो commando उसका भी training, आप right? it is Is it like that? actually it is like that. अब मैंने स्टार्ट तो कर दिया था, खत्म करने बीच में तो मैं बहुत रोई भी थी कि अब क्या करूं, खत्म कैसे होगा ये. It ended well, alhamdulillah. And you were married also by that time, right? Yes, I was married. I had kids. And how old were you when you got married? I was 19 years old when I got married. So starting from freshly out of college, I just gave my that final exams and everything, and then I instantly got married, and then into that practical life. I wasn't even able to that enjoy that thing कि मैं college के बाद जो है वो थोड़ा सा वो करती. लेकिन बहुत मेरा सफर जो है वो माशाल्लाह it's going to be 23-24 years now. So अब तक का जर्नी जो है मैंने बहुत उसमें सीखा है. Like from being a 0 meter to I can now drive my car to 120 now. So it's like No, yeah, it's it's like remarkable because you you were 19 and then you got married and then you had kids and then you did no cooking to now cooking for everyone. And you also paint, which is also time consuming. It is. So, do you sleep or not sleep at all, or because that also consumes time. Actually, my sleeping pattern is so that upside down. I can't even I can't even change it. Like it's like कि मैं रात को 11-12 बजे के बाद मेरा टाइम होता है when I'm like relaxing और थोड़ा सा I want to do something for myself. So sometime I read or sometime I started painting. Like I like to paint like every day. So उसमें ये होता है. फिर मैं ये करती हूँ कि बस लेके बैठ जाती हूँ. I keep my headphones on and music on and then I'm out of this world now. So उसमें ये होता है. फिर उसमें ही 3-4 बज जाते. Then of course फजर का टाइम होता है. I pray and then I go to bed for a while. और फिर उसमें सुबह 9 बजे से then I wake up and hardly I sleep for 3-4 hours, I think. Wow! And then you are all active and fresh. I'm all active और पूरा दिन इसी तरह गुजर जाता है. अभी जिस तरह बस आपसे जो मैं बात कर रही हूँ, बस मेरे पास अभी फिलहाल यही फारिग टाइम है. After that, then I'll be going back in the kitchen and doing like preparation for tomorrow's order and everything. So things are like that. Thank you so much for doing this. Actually, just one last thing that what's your favorite cuisine to cook?
and prepare? What you enjoy the most to make? सबसे ज्यादा. आज सबसे ज्यादा मैं बताऊं तो मुझे थाई इसलिए पसंद है, इट्स वेरी क्विक एंड यू नो दैट इजी. देसी कुजीन भी मुझे बहुत अच्छी लगती है, लाइक आई लव देसी फूड एंड एवरीथिंग, बट ऑफ कोर्स इट टेक्स टाइम, थोड़ा सा उसमें टाइम लगता है, बट क्विक एंड इजी अगर कहें तो मुझे थाई और जैसे साउथ एशियन फूड है, मलाइशियन एंड एवरी, सो आई लाइक दैट. Okay, so thank you so much, Nadia, for doing this with me, and बहुत मजा आया आपसे बात करके. And those people who keep on complaining कि हमें time नहीं मिलता, this is a very big example for time management, for cooking and doing so much. Obviously, you have to, you know, take time for yourself. You have to take out time for yourself. इस तरह बैठे-बैठे बोलने से तो time नहीं निकलता. नहीं हो सकता. बिल्कुल. Would you like to say something to our youngsters who are trying to doing it? Actually, I would like to say कि please, you know that time is very precious. और टाइम की जो कदर नहीं करते, फिर टाइम भी उनकी कदर नहीं करता. तो इसलिए आप लोगों को, अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं अपनी जिंदगी में, कुछ भी, सबसे पहले अपने लिए टाइम निकालें उस चीज के लिए, अपने लिए, अपनी जात के लिए, उसके बाद दूसरों के लिए, और फिर उस काम के लिए जो आप करना चाहते हैं. तो मेरा नहीं ख्याल है कि फिर आप कोई भी ऐसा काम है कि आप लोग नहीं कर सकते. अगर आप ये छोटी सी चीज का ख्याल रख लेंगे तो आई थिंक फिर टाइम भी आपकी कदर करेगा, और आपको जो आप चाहते हैं वो जरूर मिलेगा इंशाल्लाह. So बहुत बहुत ईद मुबारक आपको. Thanks again yes. for coming. ईद मुबारक to you and to your viewers. बहुत बहुत ईद मुबारक. के खाने आपके Instagram पे देखे जाएंगे, I think, right? I will be waiting for the lovely photography and pictures of the upcoming food, because I really enjoy looking at your, you know, food when you are cooking. और बहुत सारी कुछ तो मैंने भी try किए हैं, 2 चीजें. Oh really? Yeah. That's an honor. No, I tried couple of recipes you posted about, mostly vegan, I think, cauliflower ki thi, and then I do learn a lot in my cooking also. So if you want to learn cooking, otherwise you must learn a lot about. I learned a lot about time management from Nadia. It's remarkable that you are doing so much. And if you want to learn about food, there is Nadia's Spicy Kitchen. You also have a group, also the Adults Chronicles, so people can join. Yes. Yes, the Adult Chronicles. It's like an adult diary, and anybody can post over there, and you know that we share everything, whatever we do. I try to support each and every, you know, member of my community. Like जो भी जो काम कर रहा है, I want to support that. So मैं उस पे रोजाना आजकल ये है कि I keep on posting about the things people are doing, you know, the work they are doing. So if you want me to, you know, post your work or anything, please message me on the messenger, and I will post it over there. So I want to do this. Yeah, I just want to do this for everyone. You know, it's kind of a sadqa jariya. So जितनी मेरी तरफ से अगर किसी की हेल्प हो सकती है इस तरह से, तो मैं जरूर करने को तैयार हूँ. So everyone, you can join her group and you can learn a lot from the recipes. There's she's offering a lot. And बहुत बहुत ईद मुबारक. बहुत सारे काम करने आगे, लोगों को चांद रात मनानी है. तो अगर किसी ने लाइव स्ट्रीम मिस किया है, तो मेरे यूट्यूब चैनल पर ये पोस्ट हो जाएगा, बाकी फेसबुक पे भी पोस्ट हो जाएगा. आप फॉलो कर सकते हैं. एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड क्लिक ऑन द नोटिफिकेशन बेल, बिकॉज आई एम पोस्टिंग वेरी रेगुलरली. और वहाँ पे बहुत ज़्यादा दूसरे जो इंडिविजुअल्स, पिछले जो बहुत ज़्यादा हमारे प्रोफेशनल्स और बहुत सारे स्ट्रॉन्ग लोग जो काम कर रहे हैं, उनकी भी वीडियोस मिलेंगी. इसी तरह के डायलॉग्स हैं जिससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है. And you can also join my group as well, Free Spirits, and then, you know, network and promote work, and we are doing supporting each other. That's what we are doing. Yes, I want to say something about your group, Mehreen. It's like, you know, that breath of fresh air. बहुत उसमें अच्छा यानी मुझे वो लगता है. I keep on, you know, regularly viewing the post you post and videos सारे देखती रहती हूँ. Like it's very inspiring. So you're doing a good job.
Thank you for joining in because आप लोग की वजह से तो group है. So it's for all the. Thank you for having me. Thank you so much for this honor. Thank you so You're much. most welcome. I'm glad. Thank you for coming and taking out time. I really understand it's a hectic day today. So, and we all are free spirits. We all are doing amazing work and keep cooking and keep painting and stay happy. And बहुत बहुत ईद मुबारक. आपको भी बहुत ईद मुबारक. Thank you so much. Thank you. Bye. Bye bye.